in order to find out the angle theta between any two lines, हम इस डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करते हैं, और ये एंगल थीटा फाइंड करने के लिए हम कोई से भी दो वेक्टर्स जो उन दो लाइंस के अलोंग एक्ट कर रहे हो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग दैट एंगल थीटा। उसमें फिर हमने जिस तरह पिछली एग्जांपल में देखा था, वो दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो दो पोजीशन वेक्टर्स का भी हो सकता है, और आप चाहें तो एक फोर्स एक यूनिट वेक्टर या एक फोर्स एक पोजीशन वेक्टर या दो फोर्स वेक्टर इस्तेमाल कर लें। एनीवेज कोई से भी दो वेक्टर्स उन लाइन के अलोंग अगर आपको नोन है तो आप उनको यूज़ करते हुए डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू problem 2-112, in which we need to determine the projected component of this force FAB having a magnitude of 560 Newton acting along cable AC. So हमारे पास force है जो कि cable AB के along act कर रही है, and we need to find out the component of this force acting along this cable AC. So again the procedure is going to be very much similar जो अभी तक इससे पहले हम करते चले आए हैं, कि सबसे पहले अगर हम किसी तरह ये एंगल थीटा फाइंड कर लें बिटवीन AB एंड AC, तो हमारे लिए इस फोर्स का कंपोनेंट AC के अलोंग फाइंड करना आसान हो जाएगा। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट this angle theta, we need two vectors, one along line AB, the other one along line AC. So first of all, what should be the coordinates of point A? Sir, 3. In which direction? 0, sir, Sir. 0, 3, 0, 3, 0. ठीक है sir, 3 में So divided. 0, 3, 0 are going to be the coordinates of point B, point A. In order to reach point B, we need to travel this much of amount along the negative x-axis and this much of amount along the positive z-axis. So accordingly, the coordinates of point B would become minus 1.5, 1 minus 1.5. Y में कितना है? So 0. 0, sir. 0. And what about the z coordinate? Sir, 1. 1. So minus 1.5, 0 and 1 are going to be the coordinates of point B. Similarly, in order to reach point C, we need to travel this much of amount along the positive x-axis and this much of amount along the positive z-axis. So accordingly, the coordinates of point C would become 1.5 along x-axis, 0 along y-axis and 3 along the z-axis. So ये आपके पास point B और point C के coordinates आ गए। So writing the position vectors, which is RAB, that RAB position vector is going to be minus 1.5 I minus 3J plus K. So this is going to be the position vector RAB. Its magnitude would be equal to RAB's magnitude, and that is 3.5 meters. Similarly, moving on to the next line, which is line AC, you need to find out a position vector along this line. So our AC would become 1.5 I minus 3J plus 3K. So this is going to be our AC 1.5 I minus 3J plus 3K, and its magnitude would be our AC equal to 4.5 meter. So you have found these two vectors RAB and RAC. So in the next step, we need to find out this angle theta, which is basically cos inverse RAB dot RAC divided by 3.5 into 4.5. ऐसा ही है? Yes, sir. Okay, so again, rewriting it cos inverse. What about the numerator of this term? Sir, negative 1.5 multiplied by 1.5. So minus 1.5 into 1.5 plus So 9. minus 3 into minus 3 plus 1 into 3 divided by the same denominator. So this will give you theta to be equal to 51.75 degrees. So this is the angle between these two lines. Now, how you are going to
find the component of this force along this line AC. सर फोर्स का कॉस कंपोनेंट हो जाएगा. So it should be equal to 560 cos of 51.75. So that will give you its value to be equal to 346.69 Newton. ठीक है, यहाँ तक clear है? Yes, sir. Okay, what about rewriting this component in terms of Cartesian notation? How you are going to rewrite it in terms of Cartesian notation? सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे AC के यूनिट वेक्टर से. That's correct. So आपने RAC डिटरमिन कर लिया था, which is this particular term. आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है along line AC. So आपने इस मैग्नीट्यूड को जो 346.69 आया है इसको यूनिट वेक्टर UAC से मल्टीप्लाई कर देना है. So you are going to get the Cartesian vector notation. I hope के क्लियर है. देखो कोई पॉइंट जो आप डिस्कस करना चाहें regarding this problem 2-112. सर ये लास्ट वाला रिपीट कर दें सर. देखें, अब आपके पास आपने ये एंगल थीटा जो है वो डिटरमिन कर लिया. इस एंगल थीटा की बेसिस पे आपने इस FAB का कंपोनेंट फाइंड कर लिया जो कि AC के अलोंग है. वो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास आया था 346.69 न्यूटन. ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि इस कंपोनेंट को कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में लिखें. तो इन ऑर्डर टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन नोटेशन, ये कंपोनेंट जो है इसको आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है. उसका क्या तरीका है कि ये जो मैग्नीट्यूड आया है इसका वेक्टर का, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें बाय यूनिट वेक्टर UAC. आपको इस वेक्टर कंपोनेंट का कार्टेशियन नोटेशन मिल जाएगा. अब ये UAC कैसे आएगा आपके पास? UAC आपके पास RAC जो पोजीशन वेक्टर आया हुआ है इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड के मैग्नीट्यूड से, तो आपको UAC मिल जाएगा. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Shall we move forward? दो आसान प्रॉब्लम्स हैं और उसके बाद हम फाइनल आखिरी प्रॉब्लम करेंगे जो कि थोड़ा सा आपकी ज्योमेट्री को, ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा टेस्ट करेगा. चलें, प्रॉब्लम 2-115 की बात करते हैं. इन दिस केस आपके पास एक अदद फोर्स है which is being directed from point E to point B and this force is having a magnitude of 600 Newton. आपने करना क्या है कि you need to determine the magnitude of components of this force acting along and perpendicular to the segment DE of the pipe assembly. ठीक है, ये जो सेगमेंट है इसके अलॉन्ग आपने इस फोर्स को रिजॉल्व करना है और इसके परपेंडिकुलर आपने इस फोर्स को रिजॉल्व करना है. So if somehow you can determine the angle theta which this force is making with the segment DE, then you will be able to find out the parallel and perpendicular components. But in order to find out this angle theta, you would be requiring any two vectors acting along line EB and ED. उसके लिए आपको चाहिए क्या कि आपको इन तमाम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. So since A is our origin, so the coordinates of the origin point are going to be 0, 0 and 0. What about point B? Coordinates of point B? Sir, 0, 2 or 0. 0 to 0. Okay, so the coordinates of point B are going to be 0, 2 and 0. What about point C? Sir, 2, 2, 2. 2, 2 minus 2. 2, 2 minus 2. Minus 2, sir, sorry. Yes. Okay, but do we require the coordinates of point C? Sir, 0, 2 minus 2. नहीं, देखें मेरा अगला सवाल, do we require the coordinates of point C? No, sir. So if it is not required, so please don't waste your time in finding the coordinates of point C. Maybe जरूरत भी ना हो और आप कोई गलत coordinates लिख दें एग्जाम में, खामखा में आपका मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाए. Okay, what about point D? Can you find out the coordinates of point D?
वो तो चाहिए आपको, बट व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट? यस सर डी की चाहिए। सर 2 4 और सर 4 द एक्स कोऑर्डिनेट इज 4। वो आपने कैसे जज किया? आपके पास पॉइंट डी तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से इतना एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट्स ट्रेवल किया, प्लस सी से डी तक भी जो है वो 2 यूनिट्स है। सो ओवरऑल द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज गोइंग टू बी 4। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है देखो? यस सर। ओके, व्हाट अबाउट, जी पूछें सर लेकिन इनके दरमियान गैप भी तो है ना 2 और 2 के दरमियान, तो वो हम कितनी कंसीडर करेंगे लेंथ? नहीं कौन गैप सा गैप है? कोई गैप नहीं है। ओके सर, वो 3D है ना इसलिए लग रहा था। 3D, हाँ 3D है थोड़ा सा। आप कहीं इस गैप से उसको कंफ्यूज ना करें कि ये आपको नजर आ रहा है, नहीं 3D में बना हुआ है। अगर आप देखें ये लाइन यूं नीचे जाती है और यूं नीचे, और ये लाइन यहीं से स्टार्ट हो रही है। ओके सर। ठीक है, चलें। एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। व्हाट अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ 2 डी? सर 2 2 2 So the y coordinate is going to be 2 units, जो कि आपके पास ये वाला गिवन है 2। What about the z coordinate? -2 सर सर। -2 So it is going to be -2. So overall the coordinates of point D are going to be 4, 2 and -2. Okay, what about point E? Coordinates point E के Sir, 4, 5, -2. x कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हो रहा, इट वुड रिमेन 4। जो y कोऑर्डिनेट है उसमें ये 3 यूनिट्स जो है वो और चेंज हो रहा है। इट मींस कि 2 + 3 आपके पास 5 आ जाएगा। z कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है। So 4, 5 and -2 are going to be the coordinates of point E. I hope that the coordinates of point B, D and E are clear to all of you. यस सर। चलें, the next step is we Yes, need to sir. write the position vector which is REB. This position vector is going to be directed from point E towards point B, so it would have a magnitude of -4i minus 3j plus 2k. ऐसे ही है। Yes sir. So the magnitude of this REB would comes out to be √29. Similarly, the next vector is RED. So RED वेक्टर के लिए हम करेंगे क्या कि D में से E के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देंगे। So जैसे आपने कहा था D और E के दरमियान सिर्फ Y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे and you are going to get -3j. So its magnitude would also be equal to 3. ठीक है? Yes sir. So in order to find out this angle theta, it would be cos inverse the dot product of these two vectors in the numerator. So अगर हम numerator की बात करें, चूंकि RED में सिर्फ j है, so it means कि आपके पास numerator में 9 आ जाएगा जब इन दोनों को multiply करेंगे, और denominator में आपके पास 3 into √29 होगा. So that will give you theta to be equal to 56.15 degrees. So once you have found this angle theta, then you are going to resolve this force F along line DE. It will give you 600 cos of theta, and the perpendicular component is going to be 600 sin of theta. Clear it? Any question which you want to ask? जी आवाज आ रही है मेरी? क्योंकि कोई जवाब नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से। सर आवाज आ रही है सर। चलें, कोई सर एक क्वेश्चन? चीज नहीं समझ लगी सर। जी पूछिए। सर ये जो थीटा हमने फाइंड किया वो हमने फोर्स और डी के दरमियान में फाइंड किया। हमने ये वाला एंगल थीटा फाइंड किया है। तो सर देन आपने एफ डी ई फाइंड किया, तो सर वो तो डायरेक्शन डी से ई की टुवर्ड्स होगी, तो सर वो उसकी टेल टू टेल एंगल तो नहीं होगा। चलें एक सेकंड रुक जाएं, हम इसको नोटेशन चेंज कर देते हैं। बेसिकली ये एफ ई डी है। अब ठीक है? यस सर अब ठीक है सर, अब ठीक है सर। ठीक है, बेसिकली उसने कहा था ये जो सेगमेंट है, फोर्स का कंपोनेंट इस सेगमेंट के अलोंग फाइंड आउट कर लें। वो हमने नोटेशन जो है वो डी यूज करें या ई डी यूज करें। बेसिकली पोजीशन वेक्टर में वो नोटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज
पोजीशन वेक्टर उस डायरेक्शन में डिफाइन होता है, FED या FDE आप कोई भी नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। एनी अदर क्यूरी? चलिए अब जरा एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम देखते हैं, और अगर आप ये समझ लेते हैं तो इट मीन्स कि आपको एटलीस्ट डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से ज़्यादा फोर्सेस और उनको कार्टेशियन नोटेशन में लिखना जो है वो समझ आ गई है। आई होप कि प्रॉब्लम 2-132 विजिबल है तमाम लोगों को। Yes, sir. चलिए आपके पास एक अदद फोर्स है which has a magnitude of 300 Newton. You need to determine the magnitudes of the projected components of this force F acting along the line OA. So O is the origin of the coordinate system. So इसके coordinates तो आपको given है 0, 0, 0. आप इस force को resolve करने along this line OA. तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो तो ये कि क्या फोर्स इस लाइन OA के along ही नहीं एक्ट कर रही? यस सर। Yes, sir. यस Are you सर। sure? नहीं सर, सर ये फोर्स जो है क्या कहते हैं वाई sir, डायरेक्शन में, इसके आगे वाई डायरेक्शन में 30 फोर्स डिग्री तो पे जो है वो act इस कर रही है। प्लेन में एक्ट कर रही है। लाइन OA आपके पास ये बन रही है, तो थोड़ा सा एंगल है इन दोनों के दरमियान जो कि थीटा के तौर पे आपने डिटरमिन करना है। सो दिस फोर्स इज नॉट एक्टिंग अलोंग दिस लाइन OA। सबसे पहली बात तो ये नोट कर लें। ये पॉइंट क्लियर है रेक को? यस Yes, सर। sir. चलें अब इस फोर्स को इस लाइन OA के अलोंग इसकी प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, उसका कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए यू विल बी रिक्वायरिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ point O, the coordinates of point A, as well as you need to write this force F in terms of its Cartesian notation, ताकि आपको दो वेक्टर्स मिल जाएं, एक ही फोर्स वेक्टर हो जाएगा, एक वेक्टर ROA हो जाएगा, दोनों का थीटा आप डिटरमिन करके कॉस और साइन की फॉर्म में इसके कंपोनेंट जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। ऐसे ही है? यस सर। चलें तो वी विल बी रिक्वायरिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। थोड़ा सा गौर से इन कोऑर्डिनेट्स को समझें क्योंकि इसमें आपकी ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी ज़्यादा टेस्ट की जाएगी। चलें वी विल स्टार्ट विद द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए बिकॉज इट इज सिंपल टू रीड फ्रॉम द फिगर। so what should be the y coordinate? सर 300। 300। Sir, यानी 300. अगर गौर से देखें आपको पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए यू नीड टू ट्रेवल दिस मच ऑफ अमाउंट अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। सिंस दिस अमाउंट इज 300 मिलीमीटर, सो मैं वाई ए जो है वो 300 मिलीमीटर में ही फिलहाल लिख देता हूँ, आखिर में मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, इन ऑर्डर टू ट्रेवल टू पॉइंट ए, वाई एक्सिस के बाद आपको एक्स डायरेक्शन में इतना ट्रेवल करना होगा। सर Then -300। आपको minus z 300. डायरेक्शन में, थोड़ा सा भी गौर से देखते जाएं, मैं आपसे आंसर अभी पूछूंगा। आपको z डायरेक्शन में इतना ट्रेवल करना होगा जो कि येलो कलर से आपको नजर आ रहा है, एंड देन फाइनली you need to travel along the x axis by this much of amount। ऐसा ही है? यस सर। तो सर हम वहां पर उसका कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे 300 का। चलें ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, अभी उसका भी जवाब देते हैं। ये वाला जो आपको डिस्टेंस है इट इज गिवन टू यू एज 300 मीटर। इन अदर वर्ड्स आपके पास, अगर मैं ये कहता हूँ कि पॉइंट, जस्ट टू मेक सेंस, मैं इसको पॉइंट डी लिख लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि आपके पास ये जो कंपोनेंट है या ये जो लाइन है जिसको मैंने डी ए से रिप्रेजेंट किया है, मैं इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। सो दिस वाज लाइन डी, दिस वाज लाइन ए, एंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज 300 मिलीमीटर। ऐसे ही है? यस सर। इसके दो कंपोनेंट्स आपने बनाए हैं। One is this component which is being shown to you with a red color, the other one is dark blue। दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान जो एंगल यहाँ गिवन है वो आपको 30 डिग्रीज गिवन है,
as shown to you at the top of this figure. So ये एंगल आपको 30 डिग्रीज गिवन है. रेड कंपोनेंट जो है वो कौन सा कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है? सर रेड वाला. सर कॉस रेड कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 300 cos ऑफ 30 को. कॉस 30. ये एंगल आपके पास 90 डिग्रीज है. सो ये ब्लू डार्क ब्लू वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? Sin 30. 300 sin 30 ऐसे ही है. Yes, sir. Okay, but that red component represents which coordinate of point A? Z coordinate. Z coordinate. Z coordinate Z है. So accordingly, the Z coordinate is going to be 300 cos 30. ऐसे ही है. ये चीज क्लियर है? देखो Z कोऑर्डिनेट. Yes, sir. यही Z कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ येलो से शो किया हुआ है जो एक्चुअल फिगर है. ओके, नाउ कमिंग टू द x कोऑर्डिनेट. जिस तरह अभी पहले बात हुई थी, x डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए एक तो इतना अमाउंट हम ट्रेवल करेंगे x एक्सिस के अलोंग टुवर्ड्स द नेगेटिव x एक्सिस 300. सो द x कोऑर्डिनेट शुड बी -300. इसके अलावा 300 sin 30. इसके अलावा ये वाला कोऑर्डिनेट भी है जिसको मैंने ग्रीन से सर्कल किया हुआ है जो कि यहाँ 300 sin 30 से रिप्रेजेंट है. सो इट शुड बी -300 sin of 30. So overall the x coordinate would become -450 millimeter. Is it clear to all of you? ये पॉइंट A के x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट्स सारे को क्लियर हैं? अगर कोई डाउट है, कोई क्यूरी है तो काइंडली अभी पूछ सकते हैं आप. सर रिपीट कर. सर x वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है. सिर्फ x वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है. x वाले के लिए थोड़ा सा इधर गौर से देखें. x डायरेक्शन में हमने कहा था कि एक तो ये 300 मिलीमीटर ट्रेवल होगा. ये क्लियर है रेक को? यस सर. दूसरा, ये हमने कंपोनेंट बनाया था जो कि x डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहे हैं. अगर मैं इसको रब करूं, आपको यहाँ शो किया गया है कि ऑलरेडी पॉइंट D से इतना x और इतना z. तो ये वाला x कंपोनेंट भी मुझे जो है वो चाहिए होगा. ऐसे ही है. आपके पास एक अदद राइट एंगल ट्राइंगल सा आ गया है. ये एंगल आपके पास 90 डिग्रीज है. ये अगर 300 है, ये एंगल 30 डिग्रीज है. सो दिस वुड बी द z कंपोनेंट जिसको हमने 300 cos 30 लिखा था. ये वो कंपोनेंट है जिसको हम 300 sin of 30 कह रहे हैं. और चूंकि ये नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग है तो इसको -300 sin 30 कहा गया है. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. So overall the x component is going to be this 300 जो कि ये वाला 300 है प्लस दिस 300 sin 30. और चूंकि दोनों नेगेटिव x एक्सिस की तरफ हैं तो दोनों के साथ मेरे पास यहाँ नेगेटिव साइन आया है. ओके सर, थैंक यू. क्लियर हो गया? ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हर एक को क्लियर हैं. पॉइंट ए हर एक को क्लियर है, इसका मतलब है. Yes. चलें, सो लेट मी रब द रिमेनिंग थिंग्स. अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं. तो पॉइंट ए के मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एज वेल एज जी कोऑर्डिनेट, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ शो कर दिया. नाउ आई एम रबिंग दिस. चलें, अब आते हैं आर ओ ए की तरफ. वो अब चूंकि आपको ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ओ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, सो आर ओ ए इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील नाउ. आप सिंपली ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दें ओ के कोऑर्डिनेट्स में से. यू आर गोइंग टू गेट आर ओ ए. सो दैट आर ओ ए वुड कम्स आउट टू बी, अब मैं अगर इसको कन्वर्ट कर दूं मीटर्स में ताकि हमारे पास यूनिट्स कंसिस्टेंट रहें, -0.45 i जो कि ये एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा था. इसी तरह प्लस 0.3 j जो कि y कोऑर्डिनेट था 300 मिलीमीटर, उसको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिए. एंड फाइनली 0.2598
के जो कि आपके v कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जनरली हम 4 डेसिमल तक जाते नहीं है, लेकिन यहाँ चूंकि पहले हमने मिलीमीटर में लिखा था, अदरवाइज हम जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 डेसिमल तक अपनी चीज़ों को राउंड ऑफ करते हैं। तो अगर 2 डेसिमल तक करेंगे दैट वुड बिकम 0.26 k। सो ROA हर एक को क्लियर है। हमने अकॉर्डिंगली इस ROA का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया विच कम्स आउट टू बी 0.6 मीटर। सो आई होप कि यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं है। No, sir. चलें अब बात करते हैं इस फोर्स F की और इसकी कार्टेशियन नोटेशन की, कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस फोर्स F इन टर्म्स ऑफ इट्स कार्टेशियन नोटेशन। थोड़ा सा और से इस फोर्स को देखें। ये आपके पास फोर्स गिवन है, which has a magnitude, kindly mics mute कर दूं। So this force is having a magnitude of 300 Newton और इसको ये 30 डिग्रीज का जो एंगल गिवन है, इसकी मदद से आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। वन इज दिस कंपोनेंट, द अदर वन इज दिस कंपोनेंट। सो द कंपोनेंट which is shown here as the red component, ये कौन सा कंपोनेंट होगा? सर ये एक्स कंपोनेंट होगा सर, कोस वाला। आर यू श्योर? एक्स कॉस तो सही है आपका, ये 300 cos 30 हो गया बिकॉज एंगल इससे गिवन है आपको, बट इज इट एक्स कंपोनेंट? ये किस एक्सिस के अलावा? सर वाई कंपोनेंट। So it is basically y component and since it is acting along the positive y axis, so it means के अगर मैं f की कार्टेशियन नोटेशन की बात करूं तो मुझे इसका y कंपोनेंट मिल गया जिसको मैंने 300 cos 30 j के तौर पे लिख दिए। ठीक है, अब x और z कंपोनेंट मुझे फाइंड करना है। यहां तक क्लियर है रेक को? अच्छा, ये जो कंपोनेंट मैंने ग्रीन से शो किया है इसका एक्सी प्लेन है। सर ये z के अलोंग 30 डिग्री पे होगा, z के अलोंग। देखें ये एक्सी डायरेक्शन में ना, ये इसके एक्सी डायरेक्शन में 300 sin 30। अब आपके पास बात वही आ गई कि दिस कंपोनेंट इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन। थोड़ा सा गौर से इधर देखें, आपके पास ये कंपोनेंट आया है जिसको मैं कह रहा हूं 300 sin 30, या इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, सपोज डी तो कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसके जब आप x और z के अलोंग कंपोनेंट्स बनाएंगे तो ये दो कंपोनेंट्स बनेंगे ऐसे ही, और ये एंगल ऑलरेडी आपको 30 डिग्रीज गिवन है। So this component would become d cos 30 and this component would become d sin 30, isn't it? Yes sir. So overall आपके पास x component क्या बना? d sin 30 with a negative sign because it is acting towards the negative x-axis. So we can write this x component to be equal to minus 300 sin 30 sin 30 I, ऐसे ही है। यस सर। इसी तरह आपका जो z कंपोनेंट बना वो क्या बना? d cos 30 और d मेरे पास 300 sin 30 है, so it would become 300 sin 30 cos 30 k. So overall f would be equal to minus 300 sin 30 sin 30 I plus 300 cos 30 j plus 300 sin 30 cos 30 k. I hope कि ये कार्टेशियन नोटेशन ऑफ f is clear to all of you. सर मुझे वो सब कुछ समझ आ गया, मगर सर ये 30 की नहीं समझ आई, ये 30 डिग्री कहाँ से आ गया? 300 sin 30 के। अच्छा देखें, आपको ये 300 sin 30 नहीं समझ आया? ये वाला जो मैंने रेड से किया है यहाँ ट्रायंगल में। सर नहीं, वो मुझे समझ आ गया, मुझे ये एंगल का नहीं पता कि 30 एंगल कैसे आया है। अच्छा चलिए थोड़ा सा गौर से यहाँ देखें।
मैं इस फिगर को थोड़ा रब करके आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी हमने जिस तरह बात की f 30 डिग्रीज बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सेस, तो ये कंपोनेंट तो आपको 300 cos 30 मिल गया और ये कंपोनेंट आपको मिल गया 300 sin 30। यहाँ तक समझ आ गई है? जी सर, यहाँ तक समझ आ गई। ठीक है, अब ये कंपोनेंट जो 300 sin 30 है ये इस एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, ये फर्दर एंगल बना रहा है z एक्सिस से 30 डिग्री। तो जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे इसके ये दो कंपोनेंट्स बनेंगे, दिस इज 300 sin 30 cos 30, दिस इज 300 sin 30 sin 30। ठीक हो गया सर, समझ गए। समझ आ गई? तो यही मैंने कहा था, अगर आप इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं तो एटलीस्ट जितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दिया जाए आपको, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये सारे एंगल्स वगैरह क्लियर हो गए। सो एनी अदर क्वेरी रेलेवेंट टू दिस कार्टेशियन नोटेशन ऑफ f? ओके, अब f भी आपके पास आ गया, ROA भी आपके पास आ गया। अब थीटा कैसे फाइंड करना है हमें? सर दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से। डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। सो यूजिंग दैट डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन व्हिच इज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स f वेक्टर डॉट ROA वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड्स ऑफ f एंड ROA। आपको ROA ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ था, सो अकॉर्डिंगली आपके पास जो थीटा है दैट वुड कम्स आउट टू बी 36.1। सो आपके पास ये लाइन ROA और f के दरमियान जो एंगल है दैट वुड कम्स आउट टू बी 36.1। नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, आप सिंपली f cos थीटा कर लें तो यू विल गेट द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स एक्टिंग अलोंग लाइन OA। सो ये आपके पास वो कंपोनेंट आ जाएगा f cos थीटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इसमें सारी कहानी पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स डिटरमिन करना या फोर्स को कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में लिखने की थी। बाकी तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, उसको आप इस्तेमाल अब काफी प्रॉब्लम्स में कर चुके हैं, so that is not going to be any problem for you. I hope this solution is clear to all of you now.